So I think you have already done this topic also. So can anyone define what is a function? सर सेट्स का हाँ चलो बताओ। फंक्शन फंक्शन। मतलब सर क्वेश्चन can you पूछ रहा say? था मैं। चलो मान लो f एक फंक्शन है a से b में, सो हाउ विल यू डिफाइन इट? सपोज f is a function from a to b. Sir, Hmm. sir, A is called domain or B is called codomain. Right, a is called domain, b is called codomain, correct. So this is this you are telling domain and codomain, but how do you define function? So how can we say this f is a function? Relation you have seen, like a relation we were defining. Oh, sorry. So relation we have seen. Uh, so R was, Sir, yes. each element of X should be assigned to an element of Y. Each element of A should assign the element of B. Right. So little bit correct. So I will define here. See, actually, like we define relation. So R is a relation from A to B. Okay. So R is a subset of A cross B. Okay. And similarly, if we define the function, so actually we write f from A to B. Okay. So f is a function from A to B, and function is also a relation. So I will tell you later. So this f is also a subset of A cross B. Okay. But this is not enough. Here it is enough for a relation. Any subset of A cross B is a relation from A to B, and that is enough. But here it is not enough, so there is more restrictions. Okay, so what are those restrictions? So restriction is f is a function from A to B if, so exact definition is what? So exact definition is, we say f is a function from set A to set B. Okay, if every element of set A has a unique image in set B. Okay, is it clear? So we say f is a function from set A to set B if every element of set A has a unique image in set B. In fact, for the remark, if I tell you, so for the remark thing, uh, every function is a relation. Every function is a relation, but every relation is not a function. Every relation is not a function. Okay, so every function is a relation, but every relation is not a function. For example, so for a is set, suppose 1 2. Okay, and b is set like 3 4 5. So can you tell me total number of relation from A to B? Total number of relations from A to B. So how many relations we can define from set A to set B? The 6. Only six. So do you remember the formula? फॉर्मूला था, ए में यहाँ टू एलिमेंट है, बी में थ्री है, तो ए क्रॉस बी में सिक्स एलिमेंट्स होंगे, और एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन। तो ए क्रॉस बी में सिक्स एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट होंगे? कितने होंगे? ए क्रॉस बी में सिक्स एलिमेंट्स हैं, तो उसके पास कितने सबसेट होंगे? अरे टू की पावर सिक्स पढ़ा था, तुम लोग रिवाइज नहीं करते? सो टोटल टू की पावर सिक्स रिलेशन पॉसिबल है, दैट इज एक्चुअली 64 ना। टोटल 64 रिलेशन हम बना सकते हैं ए से बी में। कितने फंक्शंस होंगे? तो अगर मैं लिखूं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, फॉर्मूला तो नहीं बताया, ऐसे ही बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो बी में कितने एलिमेंट है? तीन। ए में कितने हैं? दो।
तो 9 इस 64 में से 9 ऐसे होंगे जो कि फंक्शन होगा। तो ऐसे समझ सकते हो, मान लो एक बॉक्स है, सपोज ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स है जिसके अंदर रिलेशंस तुम कलेक्ट कर रहे हो, ओके, मैथमेटिकल रिलेशंस, एंड इसी के अंदर एक बॉक्स होगा छोटा सा जो फंक्शन होगा, जिसमें फंक्शंस होंगे। सो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, ओके, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। सो दिस वे यू कैन रिमेंबर, है ना। सो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ओके, नाउ वी वर टॉलिंग, तो फॉर्मूला ये है, लाइक देखो, अगर एफ ए से बी में है, सो टोटल फंक्शन कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। सो दिस विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। और जैसे था, तुमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, तो आर एक रिलेशन है ए से बी में, तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए to set B is 2 raised to power number of element in A into number of element in B. ओके, सो ये फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का होता है, और ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ बताया हमने। और एक अब एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। लाइक ए इज अ सेट 1 2, बी इज अ सेट जैसे मैंने लिया था 3 4 5 मान लो, और एक मैं रिलेशन लिखता हूँ। सो देखो, अब एक रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। सो कैसे डिसाइड करो, लाइक मैं लिख देता हूँ 1 3 2 5, सपोज 1 3 2 5 1 3 2 5, चलो 2 4। अब डेफिनेशन तुम देखो, डेफिनेशन क्या है फंक्शन का, ये फंक्शन का डेफिनेशन है कि वी से f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। तो उसको तुम यहाँ इम्प्लीमेंट करो। बताओ, ये तो कौन सा फॉर्म हो गया, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तुम इसको एरो डायग्राम पे भी देख सकते हो, ए में है 1 2, बी में है 3 4 5, एंड ए टू बी तुमने कैसे मैप किया, 1 को 3 पे मैप किया है, 2 को 5 पे मैप किया है, और 2 को 4 पे मैप किया है। तो क्वेश्चन ये है, क्या ये फंक्शन है, तुम लोगों ने पढ़ रखा है पहले भी, तो बताओ क्या ये फंक्शन है। ये जो आर मैंने लिखा है, या एफ ही लिखूं तो क्या ये फंक्शन होगा, क्वेश्चन है इज इट अ फंक्शन। सो कैन वी से इज आर अ फंक्शन, क्या ये फंक्शन है। Yes, sir. सो फंक्शन का क्या डेफिनेशन है, जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा था हमने, every element of set A has a unique image in set B। सो क्या ए में हर एलिमेंट के पास यूनिक इमेज है। ए में क्या क्या है, 1 2, 1 के पास कितने इमेज है, 1 के पास एक इमेज है 3, 2 के पास कितने इमेज है, एक 4 है और एक 5 है। सो 2 के पास कितने इमेजेस हैं, Oh, 2 इमेजेस हैं। क्या यूनिक है वो, यूनिक मतलब ओनली वन, बट यहाँ 2 के yes, पास sir. इमेज 4 भी है 5 भी है, तो यूनिक तो नहीं है ना, तो ये फंक्शन नहीं होगा। सो नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं हो सकता है। ओके, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगर तुम जो तुम्हारा बुक फॉलो करते हो उसके हिसाब से देखो तो इसमें इन्होंने ऐसे डिफाइन किया है। ओके, एक और एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, जैसे वही सेम सेट पे कंटिन्यू करते हैं। सो 1 2, और बी हमने लिया 3 4 5, ठीक है। अब ए से बी में मैंने तो आर ऐसा लिखा हुआ है 1 3, चलो 2 5। अब ए बी, ए 1 2, बी 3 4 5, ओके। सो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मैं एफ लिख रहा हूँ, इसको चाहो तो आर लिखा भी, या एफ लिख लो। तो क्वेश्चन ये, क्या एफ एक फंक्शन है, इज एफ अ फंक्शन, क्या ये फंक्शन बोल सकते हैं इसको। अब चेक करो, अभी मैंने क्या किया, 1 का इमेज 3 पे है और 2 का इमेज 5 पे है, क्या ये फंक्शन है। Yes, तो यहाँ पे क्या है, एवरी एलिमेंट हैज इमेज एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज yes. यूनिक इमेज इन बी, यूनिक मतलब ओनली वन इमेज है। तो यस इट इज़ अ फंक्शन, तो ये होगा यस, एफ इज़ अ फंक्शन, ये एक फंक्शन होगा जो मैंने डिफाइन किया है
वो एक फंक्शन है। ओके। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे तुम्हारे बुक में ना इन्होंने डिफाइन किया है कि फंक्शन को अगर तुम बुक में देखोगे, सो दे डिफाइन इन दिस वे। हाउ डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम, so they are saying a function f from x to y is a rule, so मतलब वही है, अगर वैसे लिखूं a function f from a to b लिखता हूँ, ये x to y लिख रहा हूँ, मैं a to b लिखता हूँ। a function f from a to b is a rule that assigns, है ना, that assigns to each element, assigns to each element x in a, और a in a है ना, exactly one element, exactly one element, let's say y in b। ओके, तो इस तरह से बोल रहा है, लाइक यू हैव टू सेट्स, लेट्स से a and b, if you are defining a to be a function, so then each element x will be assigned to a unique element y in b, so inbuilt function। फॉर एग्जांपल, जरा देखो, अब तुम्हें दो एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें बताना है कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। सपोज a you have 1 2 3 4, okay, and b you have 5 3 2, ठीक है। इसमें क्या है कि 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 3 है, 4 का इमेज 2 है, ओके। एंड दूसरा पार्ट है 1 2 3 4 एंड 5 6 3 2, ठीक है। ये ए है, ये बी है। सो 1 का इमेज 5 है, 1 का इमेज 6 है, 2 का इमेज 3 है, ओके, एंड 2 का इमेज 3 का इमेज भी 3 है, 4 का इमेज 2। सो बताओ इनमें से कौन सा वाला फंक्शन है। पहला पार्ट मान लो इसको मैं f1 बोल देता हूँ और इसको मैं f2 बोल देता हूँ। सो विच वन, मतलब क्या क्या है, जैसे ऑप्शंस बनाएंगे तो बोथ आर फंक्शन, दूसरा हो सकता है ओनली f1, ठीक है, ओनली f1 इज अ फंक्शन, और थर्ड पार्ट कैन बी थर्ड ऑप्शन, है ना, ए बी सी, ओनली f2, एंड फोर्थ ऑप्शन हो सकता है नन ऑफ देम आर फंक्शन। क्या लगता है, सर none of it. कोई फंक्शन नहीं है। वन वाला F1 वाला। नहीं सर, ओके, व्हाई। because in set A have two images to make. सर F1 वाला फंक्शन होगा सर, F1 वाला F2 फंक्शन वाला होगा। नहीं होगा। अब देखो तुम याद रहो, डेफिनेशन तुम्हें याद रखना पड़ेगा। डेफिनेशन ये है कि ईच एलिमेंट, ठीक है, देखो, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज। पहली कंडीशन है कि ईच एलिमेंट के पास इमेज होने चाहिए, वो है यस। एंड क्या यूनिक इमेज है, अब चेक करो, 1 के पास कितने इमेज है, सिर्फ एक, वो 5 है। 2 के पास कितने इमेज है, सिर्फ एक, वो 3 है। 3 के पास कितने इमेज है, ओनली 1, दैट इज 3। एंड 4 के पास ओनली 1 इमेज है, 2। तुम्हें ए सेट को देखना है, और ए सेट में क्या देखना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव इमेज, एंड सेकेंड थिंग, ईच एलिमेंट शुड हैव यूनिक इमेज। यूनिक मीन्स ओनली 1 इमेज। So first is a function. So f1 is a function. Okay. So f1 will be a function. And what about f2? f2 check करो. So each element should have image. चलो each element के पास image है, that is fine. क्या यूनिक इमेज है, अब वन को ही देख लो, वन का एक इमेज है 5 और वन का एक इमेज है 6। आपके पास दो ही। हाँ, दो इमेज हो गया ना। यूनिक मतलब होता है ओनली वन, सो वन डज नॉट हैव यूनिक इमेज, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो ये फंक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। ओनली f1 is a function, okay। Next, Yes, sir. hmm. This may, like I have written here, you may write f1 as like this: 1 map to 5, 2 map to 3, 3 map to 3, and 4 map to 2. In this way you can also write f1. Similarly f2 you can write that way also. f2 you can write like
The ref2 is not a function, but if you want to write in roster form, so you can write like order pairs, collection of order pairs. So 1 maps to 5, 1 map to 6, 2 map to 3, okay, and 3 map to 3 now, 3 map to 3, and then 4 map to 2. Like this you can also write. Okay, so next we have, so like you know already, if f is a function from a to b, so a is called domain of function, ठीक है, जैसे तुम बता रहे थे, domain of function f, and b is called codomain of function f. ओके, सो और एक वर्ड होता है रेंज, तो मुझे समझाओ कोई फंक्शन का रेंज क्या होता है। बताओ बताओ, कोई फंक्शन का मुझे रेंज समझाओ। किसी को पता है हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, और हाउ डू यू डिफाइन रेंज ऑफ अ फंक्शन, क्या वो कोड में नहीं होता है या कुछ अलग है। कोडो में ही होता है। नहीं नहीं, कोड में रेंज आर डिफरेंट। सर कोडो में के अंदर ही रेंज होता है। हाँ, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा एक छोटा सेट होगा कोडोमेन से, और मैक्सिमम बराबर भी हो सकता है रेंज, है ना। सो हाउ डू यू डिफाइन द रेंज ऑफ अ फंक्शन, इसका नोटेशन होता है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब होता है सेट ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। सो एक्स की वैल्यू जब सेट ए में है, तो एफ एक्स की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है उसको हम रेंज बोलते हैं। कोडोमेन में ऐसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो मैप नहीं हो रहे हैं, है ना। जैसे एग्जांपल समझा देता हूँ, जैसे ए है, एक बी है, 1 2 3 4, और मान लो 5 6 7 8। सो 1 का इमेज 6 है, 2 का 7 है, 3 का 5 है, 4 का 6 है, अज्यूम करो ये फंक्शन है, बिकॉज एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। तो इसमें अगर तुम डोमेन लिखोगे, बताओ मुझे इस फंक्शन का डोमेन क्या है। इफ आई वांट टू राइट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, सो व्हाट इज डोमेन सेट। 1 2 3 4 सेट ए। हाँ, 1 2 3 4 सेट ए। व्हाट इज कोडोमेन, पहले कोडोमेन बताओ। 5 6 7 8। 5 6 7 8, and what is the range of this function, रेंज क्या है इस फंक्शन का। रेंज का मतलब हुआ कोडोमेन का वो एलिमेंट्स जो मैप हुए हैं, जो किसी न किसी का इमेज बना है। सर 5 6 7। 5 6 7, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि दिस इज सेट एफ ए रेंज। मतलब ए सेट का जो इमेज है, ए में 1 का इमेज 6 हुआ, 6 रेंज में आएगा, 2 का 7 हुआ, 7 रेंज में आएगा, 3 का 5 हुआ, 5 रेंज में आएगा, 4 का 6 है, 6 रेंज में। 8 रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि 8 किसी का इमेज नहीं है। तो एफ ए का मतलब यही होता है कि सेट ए जिस जिस एलिमेंट को मैप कर रहा है वो हमारा रेंज होगा। सेट ए जिस जिस एलिमेंट को मैप कर रहा है वो हमारा रेंज। ओके, अब आता है डेफिनेशन, क्या बोला था, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी ना। तो एक रूल होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या कहता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, जैसे कोई ग्राफ है, सो क्या किसी ग्राफ फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या, चेक करो। सो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि कोई फंक्शन, ये फंक्शन एक्चुअली फंक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तुमने फंक्शन पर रखा है, सीधा बता रहा हूँ। तो अगर कोई फंक्शन का ग्राफ बनाओगे, तो अगर कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, तो वो मैक्सिमम ग्राफ को एक बार कट करेगा, एटमोस्ट वन टाइम, एटमोस्ट वन टाइम, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट स्टेट्स दैट इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ वर्टिकल लाइन थ्रू, so if you draw a vertical line, if you draw a vertical line, so that line will intersect
graph at most one point. So either it will not cut or it will cut maximum one point each line. Okay, so each line, so what I'm saying, each line will cross graph at exactly one point. Okay, so each line will cut graph at exactly one point. Sorry, at most one point, and either it will not cut or it will cut one point. So it will never cut more than at more than one point. Okay, for example, one more graph if I'll draw. So suppose I draw this type of, like this. So this graph, can you say this will be a graph of a function? क्या ये किसी फंक्शन का ग्राफ हो सकता है ऐसा? यस or नो? Yes, sir. देखो, अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ कितनी बार कट रहा है, इधर नहीं कट रहा है। सो यहाँ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? कोई एक लाइन, चलो इसी लाइन को ले लो, तुम इसी लाइन को ले लो, तो ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है इसको? एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, है ना? तो कितनी बार किया? बट यहाँ पे क्या बोला, इफ यू ड्रॉ वर्टिकल लाइन देन ईच लाइन विल इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट। अगर वो फंक्शन है तो, है ना? अगर ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है तो इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ओके, वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है, किसी ग्राफ, अगर फंक्शन का ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। सो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ होगा तो एनी वर्टिकल लाइन विल क्रॉस द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट एनी। बट यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, एक लाइन ऐसा मिल गया जो दो बार कट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, this is not a function or not a graph of a function, you can say this is not a graph of a function, so this can never be a graph of a function। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्टिकल लाइन दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता इस तरह का। कोई भी ग्राफ फंक्शन का होगा तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो या तो वो नहीं इंटरसेक्ट करेगा या मैक्सिमम एक बार इंटरसेक्ट करेगा, दो बार नहीं करेगा। इफ इट क्रॉस टू टाइम्स, एनी वन लाइन क्रॉसेस द ग्राफ एट टू पॉइंट वर्टिकल लाइन, देन इट इज नॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शन। ओके, जैसे एक दो एग्जांपल देख लो, जैसे इस तरह का है ग्राफ ये। सो हेयर इफ यू ड्रॉ एनी वर्टिकल लाइन इट विल क्रॉस एट मोस्ट वन पॉइंट। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हमने y बराबर एफ एक्स मान लो, सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। बट कुछ ऐसा केस हुआ, अगर कहीं ऐसा तुमने ड्रॉ कर दिया मान लो, तो ये फंक्शन हो सकता है क्या? नहीं, जैसे यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया वर्टिकल लाइन, सो वर्टिकल लाइन, ठीक है, जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ वर्टिकल लाइन, जैसे मान लो चलो कहीं पे ड्रॉ कर लो, सपोज वी ड्रॉ हेयर, तो क्या हुआ, ये एक बार यहाँ कट रहा है, यहाँ कट, तो ये दिस ग्राफ कैन नेवर बी अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, सो दिस कैन नॉट बी अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का ग्राफ कभी भी नहीं होगा। ग्राफ होने का मतलब है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब है कि कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे इस विल क्रॉस द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट, वन और लेस, वन और जीरो टाइम्स। ओके, डोमेन कोड में तुम्हें पता है, रेंज भी बताया। ओके, अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि y बराबर या एफ एक्स बराबर, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स है, ठीक है, तो बताओ इसका डोमेन, फाइंड डोमेन रेंज कोडोमेन। इफ कोडोमेन विल नॉट बी आस्क्ड एवर, ओके, कभी कोडोमेन नहीं पूछेगा तुमसे, क्योंकि कोडोमेन अगर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट इट इज रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि हम रियल में बात करते हैं। रेंज एंड ग्राफ, बताओ, सो डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, रेंज क्या है और ग्राफ क्या है? तो तुम लोग ड्रॉ करो, पहले ट्राई करो, फिर मैं करूँगा।
What I heard about Tell. What is it out? X, the rate of X is equal to root X. Um, So what is the definition of domain? So this is revision class ना, so you must answer this. जो पहले तुम लोग कर चुके हो. ग्राफ तो बनाते ही हो, प्लेन में तुम्हें बनाना है कैसे कैसे उसका सेव. तो बताओ x की वैल्यू यहाँ क्या क्या तुम पुट कर सकते हो ताकि फंक्शन डिफाइंड हो ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x है ताकि फंक्शन डिफाइंड रहे. अच्छा बताओ x को अगर मैं -1 रख दूंगा तो क्या होगा, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1? क्या ये रियल नंबर आएगा क्या? नहीं सर, तो x को क्या रखना पड़ेगा ताकि ये फंक्शन डिफाइंड हो या आंसर रियल नंबर ही आए? क्या रख सकते हैं x को, क्या रखना पड़ेगा? फोर हम्म
4. 4 क्यों? मतलब मुझे ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ढूँढनी है। मतलब हमें देखना है कि सारी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या-क्या हो सकती है। तो वो सिर्फ़ एक वैल्यू ना, कितनी पॉसिबिलिटी क्या है, टोटल पॉसिबिलिटी क्या है। तो यहाँ x को मैं कुछ भी ले सकता हूँ मोर दैन इक्वल टू 0। जैसे √2 भी ओके है, नो प्रॉब्लम, रियल नंबर है। तो हमें ये था कि f(x) की वैल्यू रियल नंबर आना चाहिए, तो उसके लिए x को पॉजिटिव होना पड़ेगा एंड 0 भी पॉसिबिलिटी है, तो उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। सो x मस्ट बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो इसका डोमेन यही होगा, इसी को बोलेंगे डोमेन। इंटरवल में लिखोगे तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। तो ये इसका डोमेन है। डोमेन मतलब x क्या क्या हो सकता है, डोमेन का मतलब क्या है, x कि सेट ऑफ x क्या है, x क्या क्या हो सकता है। तो x यहाँ पे तुम्हें स्क्वायर रूट फंक्शन तभी डिफाइंड है जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है। रेंज क्या है, रेंज मतलब एफ एक्स का आंसर क्या क्या आएगा। अब तुम x अगर मोर देन इक्वल टू 0 लोगे तो एफ एक्स की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, तो वो रेंज है। बताओ एफ एक्स क्या क्या हो सकता है। एफ एक्स की वैल्यूज क्या क्या आएंगी। सो लाइक एफ एक्स मेरा अगर है √x, तो मैंने ये कहा कि डोमेन जो होगा वो 0 से इन्फिनिटी है। ठीक है। रेंज क्या होगा, रेंज मतलब एफ एक्स क्या हो सकता है, तो x कैन बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी एंड एफ एक्स कैन बिलोंग टू, तो क्या होगा, देखो अगर x मोर देन इक्वल टू 0 है तो √x भी मोर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और √x ही हमारा फंक्शन है, तो एफ एक्स मोर देन इक्वल टू 0 है। तो ये जो होता है एफ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, इसको हम रेंज बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू भी 0 से इन्फिनिटी होगी, तो रेंज इज ऑल्सो 0 टू इन्फिनिटी। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, तो रफली यू कैन मेक द टेबल टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन कि किस तरह का शेप होगा इसका। सो लाइक एक्स वाई, वाई मैं एफ एक्स को बोल रहा हूँ है ना, वाई अरे एफ एक्स कोई भी एक लिख लो। तो एक्स जब 0 है तो वाई 0 होगा, एक्स जब 1 है तो वाई 1 है, एक्स जब 4 है तो वाई 2 है, एक्स जब 9 है, एक्स जब 9 है तो वाई 3 है। इस तरीके से इसको भी कंसिडर है ना। तो इसको तुम ड्रॉ करके देखो रफली। ओके। सो जब एक्स 0 है तो वाई 0 है, मतलब ये हुआ कि एक्स 0 तो वाई 0, एक ये पॉइंट है। एक्स 1 है तो वाई तुम्हारा 1 है, तो ये 1 ले लो, 2 3 4 5 ऐसा मान लो। जब एक्स 1 है तो वाई 1 है, एक्स जब 2 नहीं एक्स 4 है तो वाई 2 है, तो एक्स 4 है वाई 2 है, यहाँ पर पॉइंट आएगा ना 2,4। एक्स जब 9 है तो वाई 3 है, तो इस तरह का पॉइंट आएगा। सो यहाँ पे अब इसको तुम ज्वाइन करो रफली। सो ये इस तरह का ग्राफ बना है और ये आगे बढ़ता जाएगा। सो अगर मैं ऐसे तुम्हें दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का है, इस तरह का शेप बनाता है। तो ये y बराबर √x का ग्राफ। ठीक है, ओनली अपर पार्ट में, तो ये y बराबर √x का ग्राफ है। हमने रफली ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। ये तुमने अगर पैराबोला पढ़ा होगा तो y बराबर √x है, x बराबर वाई स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि y हमेशा पॉजिटिव है, y नेगेटिव नहीं हो सकता। तुम्हें y को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो y नेगेटिव नीचे होता है ना, इधर ग्राफ नहीं आएगा। तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। तो इतना अभी के लिए इतना काफ़ी है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे तुमसे अगर पूछे कि फाइंड डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 3, ये क्वेश्चन है। फाइंड डोमेन रेंज एंड ग्राफ, सो फाइंड डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा ये तो कर लो, इसको करेंगे इससे पहले एक और बताओ, तुम लोग को आइडिया है क्या इस फंक्शन के बारे में, इसका ग्राफ कैसा होगा।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इस तरह का तुमने सेप देखा है? या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये किस कर्व का इक्वेशन है? किस कर्व का इक्वेशन है ये? इसमें पहले कभी नहीं देखा है? तुम लोग 12th पास किए हो कि सीधा आ गया बीटेक वूटेक में, ये जो भी कोर्स कर रहे हो? क्लास 11 12 पढ़े हो ना? सर मैथ नहीं था उस टाइम में, मेरे इसमें मेरे स्ट्रीम में। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये तुम्हारे पास पता होना चाहिए क्या है ये। किसी को नहीं पता है? तुम लोग क्या बीसीए है ना? ओके, कैसे पता चलेगा इसका ग्राफ? ये भाई ये सर्कल है, इसको तुम याद रखो। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस आर, ठीक है, रेडियस आर। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस आर है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ये एक सर्कल होगा जिसका सेंटर 0 0 मतलब ओरिजिन है, और जिसका रेडियस 2 है, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 रफली ग्राफ बनाऊंगा मैं, इस तरह का ग्राफ है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्राफ तुम देख रहे हो, क्या ये किसी फंक्शन का ग्राफ हो सकता है? यस और नो। तो क्या ये जो ग्राफ है तुमसे पूछा गया है कि इज इट अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, इज इट अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन? तुम्हें यस नो में आंसर देना है। क्या ये किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो सकता है? अब इसके लिए तुम वर्टिकल लाइन No. टेस्ट याद करो। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई ग्राफ फंक्शन का ग्राफ होगा तो उस केस में तुम कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो सिर्फ एक बार कट करेगा या एक बार भी कट नहीं करेगा। वर्टिकल लाइन या तो एक बार कट करना है या एक बार भी कट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा कि मोर देन वन टाइम कट करेगा। अगर ऐसा होता है तो वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है ही नहीं, ठीक है? तो ये ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, है ना? सो दिस ग्राफ कैन नेवर बी अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। तो ये आंसर है नो, इट कैन नेवर। बिकॉज क्या हो रहा है, एक लाइन जब ड्रॉ कर रहे हैं वर्टिकल लाइन, सो इस ग्राफ को दो बार कट कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि दिस विल नॉट बी अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ओके, हाँ, अब बाकी पिछले क्वेश्चन पे आते हैं। अब करो इसको। ट्राई करो इसका डोमेन, रेंज, ग्राफ, ये सब सर ने कराया होगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम मैं दे रहा हूँ।
फाइंड कर पाओगे क्या? अब देखो x की वैल्यूज इसमें क्या क्या हम पुट कर सकते हैं, मतलब तुम सोचो x क्या क्या रखेंगे ताकि फंक्शन डिफाइंड हो। तो सोचो ऐसा कोई x है क्या जो पुट करने पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड मतलब समझ लो इन्फिनिटी हो या रियल नंबर ना आए, इस तरह से। तो ऐसा कुछ x है क्या जो कि पुट करेंगे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए? सब माइनस आ रहा है एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब रियल नंबर तो माइनस भी होते हैं ना, नेगेटिव भी रियल नंबर है, पॉजिटिव भी रियल नंबर है। बस ये कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तुम x कुछ भी पुट करोगे तो एफ एक्स का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो मीन्स एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, हम ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स इज डिफाइंड। डिफाइंड मतलब कुछ ना कुछ रियल नंबर आंसर आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो x कोई भी रियल नंबर से ले लो तो एफ एक्स तुम्हारा डिफाइंड रहेगा। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, सो दिस इज कॉल्ड डोमेन। सो डोमेन यहाँ क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके अब क्वेश्चन है रेंज क्या होगा। ओके तो रेंज क्या होगा। तो रेंज के लिए हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई, क्वाड्रेटिक है तो पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो देखो मैं इधर करता हूँ, हमारा एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स अपॉन थ्री। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/3 बाहर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स। इसको थोड़ा सा और फिट करेंगे, सो 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू थ्री प्लस थ्री स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर। सो 1/3 एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया अपनी मर्जी से ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये ऐसा हो गया। ओके इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा 1/3 टाइम एक्स माइनस थ्री स्क्वायर माइनस, और यहाँ बचेगा थ्री। अब देखो ये हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया इसको। अब इसके अकॉर्डिंग तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका रेंज क्या है। तो देखो किसी नंबर का स्क्वायर है तो मुझे उसके बारे में पहले से पता है, जैसे एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर है ना, तो इसके बारे में मुझे पहले से पता है कि एक्स किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऐसा लिख सकते हैं कि जो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर है दिस इज मोर देन इक्वल टू जीरो, हम ये जानते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर 1/3 से तुम अगर डिवाइड भी कर दोगे so that will also be more than equal to 0. Okay and 3 सब्ट्रैक्ट करना है, so 1/3 एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस थ्री मोर देन इक्वल टू जीरो माइनस थ्री। तो ये अब लेफ्ट साइड में जो बना है वो हमारा फंक्शन है। सो लेफ्ट साइड में जो है वो हमारा फंक्शन है, दैट इज मोर देन इक्वल टू माइनस थ्री। तो क्या आ गया, एफ एक्स मोर देन इक्वल टू माइनस थ्री, मतलब एफ एक्स का आंसर माइनस थ्री से हमेशा ज़्यादा होगा या माइनस थ्री का इक्वल होगा। तो इसी को रेंज बोलते हैं जो फंक्शन की पॉसिबल वैल्यूज है। तो ये रेंज हो गया तुम्हारा माइनस थ्री से इन्फिनिटी इंटरवल में। सो दिस इज द रेंज। ओके अब क्या होगा, अब ग्राफ। सो यहाँ था हमारे पास डोमेन कि x की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, यहाँ डोमेन था x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो डोमेन पूरा रियल नंबर आ गया। क्वाड्रेटिक जब भी फंक्शन हो तुम कोशिश करना परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया यहाँ पे। अब उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना इजी हो जाता है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी। सो दिस है ना, वी नो ऑलरेडी दैट स्क्वायर इज मोर देन इक्वल टू जीरो। फिर हाफ से दोनों तरफ 1/3 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों तरफ माइनस थ्री सब्ट्रैक्ट किया ताकि ये टर्म मिले मुझे ये टर्म चाहिए था, है ना, ये जो लास्ट में दिख रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो गया कि एफ एक्स की वैल्यू माइनस थ्री से ज़्यादा होगी या इक्वल होगी, तो ये रेंज आ गया। ग्राफ कैसा होगा, सो ग्राफ के लिए क्या है, अ, तुम देखो ये पैराबोला है। जब भी स्क्वायर होता है ना, वाई बराबर एक्स स्क्वायर टाइप का जो चीज़ें होती हैं वो पैराबोला होती हैं। तो ये है ना एफ एक्स हमारा वाई है, वाई बराबर ये है 1/3 एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस थ्री। तो एक तुम अगर चेक करना चाहो तो एक्स को थ्री रखने पे फंक्शन की वैल्यू माइनस थ्री होगी। मतलब ऐसा है,
तुम लोगों ने y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ये इस तरह का पैराबोला होता है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब अगर मैं पूछूं y बराबर x माइनस 3 का स्क्वायर है, तो देखो एक्स स्क्वायर था तो x की वैल्यू 0 पे y 0 हो जाएगी। अब ये x माइनस 3 का स्क्वायर है, तो जब x को 3 पुट करोगे तो y 0 होगी। सो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? 3 पे। सो x माइनस 3 का होल स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, 3 यूनिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। अब इसको 1/3 से डिवाइड करोगे तो बस फिर फंक्शन की हाइट कम हो जाएगी ना। एंड सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा क्या? 1/3 x माइनस 3 का स्क्वायर। अब -3 करोगे तो वो 3 यूनिट डाउनवर्ड चला जाएगा, इस तरह का ग्राफ होगा। तो फाइनली जो मुझे समझ आया वो ये है कि पहली बात तो यहाँ 3 ले लो, और सो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनाएगा ये रफली। तो ये इसका ग्राफ है अप्रॉक्स। कैसे डिसाइड किया मैंने एक्स स्क्वायर से स्टार्ट किया। मैं फिर से राइट साइड में बना के दिखाता हूँ कैसे डिसाइड किया मैंने पहले डिसाइड किया एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है। तो मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, ठीक है। अब मैं देखा कि ठीक है ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एक्स माइनस 3 का ग्राफ कैसा होगा, मतलब वाई बराबर एक्स स्क्वायर का वो ग्राफ है, वाई बराबर एक्स माइनस 3 का ग्राफ होल स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा। तो ये देखा ये जीरो कब होती है, एक्स वैल्यू 3 पे, तो एक्स जब 3 रही होगी तब ये जीरो होगी। और पैराबोला ये भी है। सो ये थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुमने कैलकुलस में सीखा होगा। तो ये है, फिर 1/3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सो 1/3 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी ना, 1/3 हो जाएगी। सो पास तो जीरो से ही करेगा, बस ग्राफ थोड़ी नीचे आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से कुछ नीचे आ जाएगी। तो ये तीसरे वाले ग्राफ हुआ। तुम चाहो तो मैं कलर चेंज कर बता सकता हूँ, है ना। सो ये जो मैंने बनाया है ये इस वाले का है। अब क्या था, -3 करना था, तो -3 करेंगे तो ग्राफ 3 यूनिट नीचे आ जाएगी। सो ग्राफ क्या होगी, 3 यूनिट नीचे आ जाएगी। तो 1 2 3 मान लो 3 यहाँ पे है, 3 इधर है, तो कुछ नहीं, ग्राफ 3 यूनिट नीचे आ जाएगी। इस तरह का रफली ग्राफ हो गया। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर ये था, 1/3 x माइनस 3 होल स्क्वायर -3। तो इसका ग्राफ इसी कलर में जो यहाँ मैंने किया है, ये रफली ये ग्राफ। ओके, अब x को 0 रखो तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो मतलब ओरिजिन से पास करके यहाँ पे। तो ये वाला आंसर है जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है रफली। सो दिस इज द आंसर। ये पॉइंट क्या है, x जब 3 है तो y की वैल्यू -3 है, 3, -3। ओके ठीक है, टाइम भी हो गया है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। तो तुम लोग रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है, जो भी नोट्स सर ने दिए होंगे या बुक्स तुम्हारे पास है तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर थैंक यू, मिलते हैं कभी नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir.